हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। Yesterday we saw the globe and discussed the various features belong to the globe. We discussed about the rotation and revolution of the earth and circle of illumination, tropics, uh, and seasons of India, and elliptical path, orbits, axis. All these we have discussed. And today we have to discuss about the equinox and solstice. So, what is the solstice and what is the equinox? So, firstly, we will discuss about the solstice. So, here is written summer solstice. Mainly, solstice when there is longest day and shortest night in the northern hemisphere. It is known as the summer solstice. When there is the longest day, known as the summer solstice, and when there is the shortest day, it is the winter solstice. It is the winter solstice. The longest day and the shortest night at these places occur 21st June. It is the summer solstice. And almost 21 or 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards the uh, sun. As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn 23.5 degree south. ये हमने आपको ये पोजीशन बना के दिखाई थी ना. A larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happened in the northern hemisphere. It means when there will be the summer solstice in the northern hemisphere, there is the winter solstice in the southern hemisphere. And when there is the winter solstice in the southern hemisphere, so when it will be held? So winters northern phase the northern hemisphere phase the winters in the दिसंबर जनवरी. अब क्या होगा, जो समर सॉल्स्टाइस है, तो समर सॉल्स्टाइस में क्या करता है, जब हमारे यहाँ क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टाइस कहते हैं. दिन में गर्मी होगी तो आप ऐसे लगा सकते हैं. ये होता है 21 जून को. और जब लॉन्गेस्ट नाइट होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस होता है, बहुत ठंडा होता है. ये होता है लगभग 21 दिसंबर. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 मंथ का होगा, जून एंड दिसंबर. 21 जून एंड द 21 दिसंबर. ये हो गया ना विंटर और समर सॉल्स्टाइस. अब उसके बाद क्या होता है, हमारा यूकिनॉक्स रहता है. यूकिनॉक्स रहता है वेयर द डे एंड नाइट्स, यही है. यस, डे एंड नाइट्स आर इक्वल एंड दिस पोजिशन इज नोन एज द यूकिनॉक्स. व्हेन डे एंड नाइट्स आर द इक्वल. इक्वल कितने के होंगे, लगभग 12 आवर्स. ये मान लो आप. तो ये कब आती है कंडीशन, इट हैपन्स 2 टाइम्स, ट्वाइस इन अ ईयर. 2 टाइम्स कब कब हो, 21 मार्च एंड 23 सितंबर. मार्च एंड सितंबर. मार्च इज द मंथ ऑफ द थर्ड मंथ, सितंबर इज द मंथ ऑफ द 9th मंथ. तो यहाँ भी क्या हो गया, 6 मंथ का डिफरेंस है ना. तो यहाँ भी क्या हो गया, days and nights are the equal. Then, so the whole earth experiences the equal days and equal nights. This is called the equinox. Equinox. And
23rd September it is autumn season in the northern hemisphere while spring season in the southern hemisphere. 21st 23rd मार्च सितंबर ऑटम हो गया, और 21st मार्च the opposite of the in case of the 21 March when it is spring in the northern hemisphere the autumn in the southern hemisphere. अब 21 मार्च में हमारे यहाँ क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में उसमें क्या होगा, ऑटम होगा. सो thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. These are there. So we discussed about the equinox and seasons. Equinox and seasons or solstice. Once again about solstice. Solstice क्या है, जब क्या होता है, कर रहा है कि शॉर्टेस्ट डे होते हैं. तो solstice है टू टाइप्स है, विंटर एंड समर. तो विंटर solstice when इन द 21 दिसंबर के आसपास होता है, जब क्या होते हैं, डेज शॉर्टेस्ट होते हैं, शॉर्टेस्ट डेज होते हैं एंड और लॉन्गेस्ट नाइट होगी. तो इस विंटर सोलिस्टाइस का कहा जाएगा. समर सोलिस्टाइस क्या है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. ये कब होगा, 21 जून को होगा. अब उसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं, जो यूकिनॉक्स की बात कर रहे थे. किसकी बात कर रहे थे, यूकिनॉक्स. सो यूकिनॉक्स क्या हो गया हमारा, यूकिनॉक्स हमारा है कि जब डे एंड नाइट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. डे एंड नाइट्स आर इक्वल, दिस इज नोन एज द यूकिनॉक्स. अब ये कब कब होते हैं, 21 मार्च एंड 23rd सितंबर. 21 मार्च एंड 23rd सितंबर में क्या होते हैं, डेज एंड नाइट्स आर द इक्वल. ओके. अब उसके बाद कहा गया है कि एक कुछ ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, अभी हम शॉर्टेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट की बात कर रहे थे और लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट की बात कर रहे हैं. तो ये क्या कहा गया है कि जैसे हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है. यहाँ पर अब नॉर्वे में कभी कभी क्या कहता है कि वहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आती है, नॉर्वे के आसपास इट इज़ लोकेटेड नियर द आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल के आसपास का एरिया है जहाँ से पोल्स क्या होते हैं, नज़दीक पड़ते हैं, साउथ नॉर्थ पोल. तो वहाँ पर कभी कभी क्या कहता है, देयर इज़ ओनली 40 मिनट्स नाइट. कितने मिनट की नाइट होती है नॉर्वे में, लगभग 40 मिनट की केवल, लेस देन 1 आवर. तो ऐसे में क्या कर रहा है, तो कभी कभी आपने सुना होगा नॉर्वे इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. इसका मतलब क्या होगा, वहाँ दिन मिडनाइट में क्या आ जाएगा, सनराइज होने लग जाएगा. ओके. आपने देखा होगा कभी कभी वहाँ पर जैसे कहता है कि वहाँ पर 40 मिनट्स का नाइट हो गया. और कभी कभी यही कंडीशन कहाँ आती है, एज लाइक इन द आइसलैंड. आइसलैंड में क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलते हैं. शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलते हैं आइसलैंड में कभी कभी. अब आइसलैंड में शॉर्टेस्ट डे का जैसे क्या होता है, वहाँ का रह के खाली 2 से 2.5 घंटे का क्या होते हैं वहाँ पर डे होते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज ओनली 2.5 hours. I like it will be the sunrise near the 12 o'clock in the noon and the sun will set near the 2 p.m. or 2:15 p.m. So this is the shortest day. और वैसे ही कहता है कि जो नॉर्वे हमारा लगभग ये हमारे फिनलैंड और रशिया के आसपास का क्या है कंट्री है, वहाँ ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, देखने को मिल जाती हैं. अब ऐसे ही कहता है जब इंडिया में क्या कर रहा है, इंडिया में हमने देखा करा है कि जो हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में हमारा क्या हो गया है, जो लॉन्गेस्ट डे है वहाँ पर मेजर किया गया है, लॉन्गेस्ट डे. तो ये सब बातें होगी. तो आज हमने ये सब इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और उसमें से जो हमने डायग्राम्स बता रखे हैं आप ड्रॉ कर लेना. और फिर हम क्या करेंगे, कल हम आपकी एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे. किस पर डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे.
और आप ये 2-3 डायग्राम बना लेना आपसे जो कहे थे। हाँ, तो आज के लिए मुझे लगता है ये सफिशियंट है। अब कल हम क्या करेंगे, फॉर द नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द exercise. Okay, thanks for today.